A very good morning to all of you. Today we are going to discuss the semiconductor devices, and it is the next part in which we basically focus on the point which is highlighted here. It is darkly highlighted, so it appears to be red in color. These are point number 1, 2, 3, 4, and then there is point number 6 and 7. Only these points we have to cover for this session only. It includes PN junction diode, forward biasing, reverse biasing, diode characteristics, forward bias and reverse bias both, and then we have to discuss diode as a rectifier, full wave rectifier and half wave rectifier, and actually the meaning of the rectifier which is necessary, and after that full and half you can easily understood. So we will focus with the next slide. First of all, we are reaching to the topic PN junction here. सबसे पहले आपका क्वेश्चन जो है व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड एक्चुअली. As the name say, PN means when a p-type semiconductor is joined to an n-type semiconductor. What is a p-type semiconductor actually? When a pure semiconductor is doped with pentavalent trivalent impurity. जब किसी प्योर सेमीकंडक्टर को हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से ऐड करते हैं तो देयर इज ए क्रिएशन ऑफ होल्स व्हिच आर द मेजॉरिटी चार्ज एरिया, and this is called p-type semiconductor. Similarly, when we add pentavalent impurity in a pure semiconductor, then it becomes a n-type semiconductor because of the majority of the electron. अब हम क्या कर रहे हैं, we take a p-type of material and take n-type of material and fabricate the together. हम उन दोनों को आपस में फैब्रिकेट कर रहे हैं such that their crystal structures remains the continuous at the boundary. The fabrication is such that कि उनके crystal structure के अंदर कोई भी disorder नहीं आना चाहिए. The resulting arrangement is called PN junction diode. ये जो result आपका बनेगा by adding the two crystals of the P type and N type, this is called PN junction diode or the semiconductor diode or a crystal diode. So you can see the picture over there. There is one side P, another side N. One side is positive charge shown here with the purple color dot that shows the combination of the electron and the holes over there. And similarly for the there is a minus sign and black color dots are there which shows the p-type combination. There is hole and the vacancy is there. Now it is shown here that dot जो आपका black dot है that is the mobile holes majority area, and majority area is holes in p side, whereas immovable negative impurity ions are there. ये आपके minority area आप assume कर सकते हैं इसको, या ऐसे मतलब particles हैं, ऐसे impurity ions हैं जो कि movable नहीं है, they can't move, only the holes can change its position or can move to the negative side or n side. Similarly, in the n portion there is two symbols which are representing, that is a purple dot which shows the mobile electron which are the majority carrier for the n side, and plus with a green sign circle immovable positive impurity ion. When a PN junction is formed, the P region has majority carrier as holes and immovable negative charge ion. मतलब P sides के अंदर मेजॉरिटी चार्ज के एरिया जो होते हैं होल्स होते हैं, और जो आपके इमूवेबल पार्टिकल्स होते हैं आयंस होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते. Similarly for the n side, opposite of this, majority charge के एरिया is electron and minority charge के एरिया is minority charge के एरिया जो होंगे वो आपके ये हैं प्लस पार्टिकल्स आपको दिए गए. तो होल अरेंजमेंट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. पूरा जो अरेंजमेंट होता है, इफ वी टॉक अबाउट कि हमने यहाँ पे कोई बैटरी नहीं लगाई है तो उस केस में पूरा ही सिस्टम आपका न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. फॉर सिंप्लिसिटी, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर आर नॉट शोन इन फिगर.
यहाँ पे हमने माइनॉरिटी चार्ज करके आपको नहीं दिखाया है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। Now this is a condition of PN junction diode immediately after it is formed. जैसे ही हम P टाइप और N टाइप को कंबाइन करेंगे, तो जो रीजन आपका P टाइप के और N टाइप के कॉम्बिनेशन के कारण बनेगा, द पॉइंट वेयर द टू लेयर्स फैब्रिकेट टुगेदर, there is a red dotted line with dark dash over there. It shows the position or it shows the portion of the two region which is joined together. P टाइप का आपका लेफ्ट राइट साइड और N टाइप का आपका लेफ्ट साइड, जिस जगह पे एक साथ प्लेस किया गया है, ज्वाइन किया गया है, फैब्रिकेट किया गया है, उस पर्टिकुलर पोर्शन को हम जंक्शन पॉइंट कहते हैं। दिट इज कॉल्ड जंक्शन पॉइंट। और जंक्शन पॉइंट के नियर में जितने भी होल्स होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दे आर इजीली टू मूव फ्रॉम वन लेयर टू अनदर लेयर। मतलब एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन तक डिफ्यूजन जो पॉसिबल हो पाता है, वो केवल उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का होगा जो आपके डिप्लेशन जंक्शन लेयर के पास होंगे। जो जंक्शन पॉइंट है उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन एंड होल्स हैं, दे कैन मूव फ्रॉम वन पोर्शन टू अनदर, वो डिफ्यूज हो सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके जो होल्स हैं, द होल्स विच आर देयर कैन गो टू द नेगेटिव एन टाइप, एंड जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसका रिकम्बाइन करेंगे। तो आप यहाँ से देखिए, ये आपका जो डॉट है ये एन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन गोज टू होल साइड, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से जंप करके होल के पास जाएगा और इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। और जहां से ये अपने प्लेस को छोड़ के जाएगा, उसकी जगह पे एक वैकेंटी क्रिएट होगी जिसको हम होल्स कह सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एन साइड से पी साइड के लिए, लेकिन जब ऐसा वो करेगा तो उसका जो स्पेस खाली हुआ उसको हम होल कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो मूव करके एन साइड से पी साइड शिफ्ट होगा और लीव द स्पेस ऑफ होल ओवर द एन साइड नियर बाय द जंक्शन रीजन। सो विद दिस वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन्स अगर मूव करते हैं तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन करंट की होती है, दैट इज शोन हियर। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे एक फिक्टिशियस बैटरी। फिक्टिशियस पोटेंशियल का मतलब यहाँ पे क्या है कि ड्यू टू द फैब्रिकेशन सम इलेक्ट्रॉन्स आर जंपिंग फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है, दैट मींस देयर मे बी अ चांस ऑफ सम पोटेंशियल, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आ सकता है, जिसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक बैटरी है, टू चेक दैट देयर इज अ चेंज इन पोटेंशियल्स। सो कमिंग टू द अदर पार्ट, दिस पर्टिकुलर विड्थ इज कॉल्ड डिप्लेशन रीजन, जो कि नियर बाय होती है और इसकी थिकनेस कम होती है। इन वेरी बिगिनिंग इट इज वेरी थिन। आफ्टर द पीएन जंक्शन डायोड इज फॉर्म, जब पीएन जंक्शन को हम मतलब फॉर्मेशन करते हैं, पी टाइप को एन टाइप के साथ फैब्रिकेट करते हैं, the holes from the p region diffuse into the n region। p region में जो holes होते हैं वो n region के साथ diffuse होते हैं due to difference in concentrations। free electron from the n region diffuse into the p region due to the same reason। वही आपका difference in concentration है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन होल के पास जाएगा, होल्स इलेक्ट्रॉन से कंबाइन होंगे and they nullify the effect of each other। holes and electrons combine near the junction, we remember they combine near the junction portion only। each recombination eliminate an electron and a hole। जब भी रिकॉम्बिनेशन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक होल के साथ सेटअप बनाएगा एंड आपका जो रिजल्ट आएगा वो न्यूट्रल हो जाएगा। the uncompensated negative mobile ion in the p region means the negative ion which can't move in the p region do not allow any more free electron to diffuse from n region। the uncompensated positive immobile ions in the n region do not allow any more hole to diffuse from the p region, क्योंकि ये पहले से ही पॉजिटिवली चार्ज है और होल्स को ये आने नहीं देगा, ठीक है। और उसी तरह से जो P है वो पहले से नेगेटिवली चार्ज बच गया है, क्योंकि सारे होल्स उसके कंबाइन हो गए हैं, तो ये दोबारा से न्यू इलेक्ट्रॉन को आने को अलाउ नहीं करता है। तो वो रीजन यहाँ पे आपको बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नाउ देयर इज
Now look at this. The positive ion in the N region and the negative ion in the P region are left uncompensated. The region containing uncompensated acceptor. Acceptor कौन होते हैं? होल होते हैं. And donor कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो uncompensated acceptor means whole and donor means negative ions is called depletion region. इसको depletion region कहेंगे. Because this region devoid of the mobile charges. ये एक ऐसा region है जो mobile charges को क्या करता है? Divide करता है. Since the region is having only immobile charges, therefore the region is called space charge region. बेसिकली जो क्वेश्चन जो आता है वो डिप्लेशन रीजन का होता है, तो यू हैव टू फोकस ऑन दैट, नॉट ऑन द स्पेस चार्ज रीजन. द एन रीजन इज हैविंग हायर पोटेंशियल देन पी रीजन. एन जो पोर्शन है उसका पोटेंशियल ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पी रीजन. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप इन द शो इन द फिगर, जो कि आपको दिख रही है. पी साइड से एन साइड के लिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, द पिक्चर ऑन द प्रीवियस स्लाइड. सो एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप as shown in the diagram in the last slide. The difference the potential between the P and N region across the junction make it difficult for the holes and the electrons to move across the junction. क्योंकि यहाँ पे एक पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट हो गया है जिसको हमने डिप्लेशन रीजन कहा था. अब फर्दर कोई भी इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड नहीं आ सकता, कोई भी होल पी साइड से एन साइड नहीं जा सकता. तो इसके कारण क्या होगा? इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द इलेक्ट्रॉन एंड होल्स टू मूव अक्रॉस दिस जंक्शन लेयर और द डिप्लेशन रीजन. सो इट बिहेव एज ए बैरियर और रजिस्टर. ये आपका बिहेवियर कैसा हो जाएगा? इसका बिहेवियर एक बैरियर जैसा होगा. सो समटाइम इट इज आल्सो कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर. डिप्लेशन रीजन इज आल्सो कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर और द हाइट ऑफ बैरियर. The physical distance between one side and other side of the barrier is called the width of barrier. मतलब आपका P रीजन से लेके N रीजन का वो सेक्शन जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन और होल्स मूव नहीं कर सकता, तो वो पर्टिकुलर लेंथ जो होगी उसको पोटेंशियल बैरियर कहा जाएगा और डिप्लेशन विड्थ भी कहते हैं. विड्थ ऑफ द बैरियर. पोटेंशियल बैरियर फॉर द केस ऑफ सिलिकॉन इज 0.7 वोल्ट. अगर हम बात करें पोटेंशियल बैरियर सिलिकॉन की तो ये 0.7 वोल्ट होता है. एंड फॉर द केस ऑफ जर्मेनियम द बैरियर इज अबाउट 0.3 वोल्ट. सो एक में आपकी पोटेंशियल जो आपकी डिप्लेशन लेयर की विड्थ होती है वो ज्यादा होती है, वो सिलिकॉन है, और जिसमें डिप्लेशन रीजन की विड्थ कम है वो जर्मेनियम है. द पोटेंशियल बैरियर अपोज द मोशन ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर. अब मेजॉरिटी कैरियर की बात करें, in P region the majority carrier is whole. In N type there is majority carrier is electron, and this barrier do not allow them to combine. आपका जो होल है वो आपका N साइड की तरफ जाने की कोशिश करेगा बट ये अलाउ नहीं करेगा. सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन है वो P साइड जाने की कोशिश करेगा और ये उसको अलाउ नहीं करेगा. तो पोटेंशियल बैरियर दोनों के ही मोशन को अपोज करता है, दोनों साइड के मेजॉरिटी कैरियर को. However, some of the majority carrier may have some high kinetic energy and manage to overcome the barrier and cross the junction. कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ मेजॉरिटी कैरियर के पास एनर्जी ज्यादा होती है and they will manage to overcome this barrier and cross the junction. Potential barrier also help for the movement of minority carrier. कभी कभी ये माइनॉरिटी कैरियर की भी हेल्प करेगा मूव करने में, जैसे कि आप अब देखेंगे. सबसे पहला केस हम पढ़ गए हैं बाइसिंग के बारे में. बाइसिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसिंग? इफ वी अप्लाई अ वोल्टेज फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, अगर हम किसी जंक्शन डायोड पे बाहर से कोई एक सप्लाई देते हैं, बैटरी की पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, देन इट इज कॉल्ड बाइसिंग. एंड इफ वी कनेक्ट पॉजिटिव ऑफ द बैटरी विद द पी साइड, what I am connecting positive of the battery to the P side of the junction diode and negative of the battery to the N side, then it is called forward biasing. Question is always coming in exam, what is forward biasing, what is reverse biasing? So when the P type of the material is connected with the positive plate of the battery
and n type is connected to the negative plate of the battery. It is called forward biasing. I think सबको समझ में आ गया होगा. This is forward biasing. So there is the diagram in which there is P and N. Two regions are shown here with different concentrations of mobile charge atom आपको दिख रहा है. एक तरफ आपका मोबाइल आइटम जो मेजोरिटी किया गया है वो होल्स है, ब्लैक डॉट, और एक तरफ आपके इलेक्ट्रॉन है जिसको पर्पल डॉट से दिखाया गया है. डिप्लेशन विड्थ इज शोन हियर. अर्लियर इट इज वेरी अर्लियर ये आपकी जो थी स्टार्टिंग में कुछ और थी, और जैसे जैसे आपका यहाँ से करंट फ्लो करेगा डिप्लेशन रीजन के अंदर चेंज आएगा. द डिप्लेशन विड्थ गोइंग टू बी चेंज नाउ व्हेन द करंट स्टार्ट फ्लोइंग. When the positive terminal of the battery is connected to the P region and the negative terminal connected with N region, then the PN junction diode is said to be forward biased. Holes in the P region are repelled by the positive terminal, क्योंकि होल क्या है, पॉजिटिव चार्ज किया गया, और साथ ही साथ आपका प्लेट जो है, बैटरी की जो प्लेट है वो भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रिपेल्स पॉजिटिव. तो इसीलिए होल्स जो होंगे वो पी साइड से एन साइड की तरफ रन करना स्टार्ट कर देंगे. नाउ व्हाट हैपन, सो सम होल्स एंड द फ्री इलेक्ट्रॉन. अब फ्री इलेक्ट्रॉन की बात करें, हमने देखा क्योंकि आपके पॉजिटिव प्लेट जो है वो पी साइड से कनेक्टेड है, देयरफॉर होल्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द एन साइड बिकॉज ऑफ रिपेलिंग. सिमिलरली अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, तो एन साइड जो है वो इलेक्ट्रॉन से अटैच है, बोथ आर नेगेटिव, therefore this will repel electron, free electron, and free electron start moving toward the p side. तो यहाँ पे ऊपर आप देखिए there is IH and IE. IH shows the direction of current due to the flow of hole, and IE again shows the direction of current due to the motion of free electron. इलेक्ट्रॉन का मोशन आपका लेफ्ट हो रहा है, लेकिन करंट जो जाएगा वो आपका राइटवर्ड जाएगा. तो आप यहाँ पे कंबाइन करके देखेंगे तो टोटल करंट जो है वो होल्स प्लस इलेक्ट्रॉन के कारण आता है. तो यहाँ पे आपको उसके बारे में दिया भी है, द टोटल करंट इज बिकॉज ऑफ द सम ऑफ द IH प्लस IE. सम होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंटर इनटू द डिप्लेशन रीजन. द पोटेंशियल बैरियर एंड द विड्थ ऑफ द पोटेंशियल रीजन डिक्रीजेस. जैसे जैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स करंट फ्लो करेगा सर्किट में, वैसे वैसे आपके इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स शिफ्ट होंगे अपने प्लेसेस को, एंड दे स्टार्ट रिकम्बाइनिंग. वो क्या करेंगे, डिप्लेशन रीजन के पास आकर के फ्यूज होना स्टार्ट हो जाएंगे, एंड इससे क्या होगा, आपका जो पोटेंशियल बैरियर क्रिएट हुआ था उसकी विड्थ कम हो जाएगी. ओरिजिनली यहाँ पे हमारे पास ये डॉटेड लाइन आपको दिखा रखी थी एक्सटीरियर में, ये आपकी ओरिजिनल कंडीशन थी जब हमने डिप्लेशन रीजन की बात की थी. बट क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर गए, होल्स फ्लो कर गए, और आपने बाहर सप्लाई दी है, इसीलिए आपकी विड्थ रिड्यूस हो जाएगी, एंड डिप्लेशन विड्थ जो हो जाएगी आपकी नई, आपको जो डॉटेड लाइन दिखाई गई है वो आपकी न्यू विड्थ आ जाएगी. देयरफॉर ए लार्ज नंबर ऑफ मेजॉरिटी कैरियर डिफ्यूज फ्रॉम एन रीजन टू पी रीजन एंड पी रीजन टू एन रीजन, एंड देयरफॉर द डिप्लेशन विड्थ डिक्रीजेस. नाउ द होल करंट एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट्स are in the same direction from the positive side to the negative side, and therefore they adds up. Once they cross up the junction, the hole in the N region and the electron in the P region becomes minority carrier and charge, minority carrier of charge, and constitute the minority current. For each electron hole recombination, an electron from the negative terminal of the battery enters to the N side and then drift toward the junction. In P region, near the positive terminal of the battery, an electron breaks its covalent bond in crystal and thus a hole is created. This is what I am talking about in the first slide of the PN junction. कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करके होल की तरफ जाता है तो जो स्पेस इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे क्रिएट करेगा एन टाइप के रीजन के अंदर, उस पर्टिकुलर वैकेंटी ऑफ स्पेस को हम होल्स कह देते हैं. वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. तो आई एम नॉट फोकसिंग टू मच ऑन दिस टॉपिक बिकॉज ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ. आगे चलते हैं थोड़ा सा. ये हमने पी टाइप पढ़ा. नाउ दिस इज रिवर्स बाइसिंग.
रिवर्स बायसिंग में आप देखिए क्या चेंज आया है. There is a p side, there is an n side, and now the p side is connected with the negative plate, जो कि पहले वाले केस का रिवर्स था. यहाँ पे p टाइप जो होता है वो नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट होता है और n टाइप जो होता है पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट हो जाता है. ओरिजिनल विड्थ आपकी इंटीरियर वाली डॉटेड लाइन थी, लेकिन बिकॉज ऑफ जैसे ही आप यहाँ बैटरी लगाएंगे पॉजिटिव अट्रैक्ट विद द नेगेटिव प्लेट एंड फ्री इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट. देयरफॉर करंट्स का अमाउंट जो हो जाएगा वो रिवर्स हो जाएगा. ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिवर्स करंट. और यहाँ पे रिवर्सिंग से क्या होगा, आपका डिप्लेशन रीजन जो था, जो कि पहले आपको एक सर्टेन विड्थ आपके दिखा रहा था, ये विड्थ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागेंगे और होल्स आपके नेगेटिव प्लेट की तरफ भागेंगे. तो रिकम्बिनेशन होना तो बचेगा ही नहीं इनका. दे स्टार्ट मूविंग अवे. अवे होने से क्या होगा, इनके बीच की जो विड्थ है वो बढ़ती चली जाएगी. So there is some points which is given here. आप इसे पढ़िएगा. In reverse biasing, n region is connected with negative plate and p region is connected with negative plate and n region connected with positive plate. Holes in p region is attracted by the negative terminal. सारा जो पॉइंट है आपको वो इसमें दिया है, आप इसको पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा. Because electron and holes are moving away from each other, therefore यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन वाला पोर्शन आपको नहीं मिलेगा. जैसे आपने देखा था लास्ट स्लाइड में कि इलेक्ट्रॉन कंबाइन होता है होल के साथ, ठीक है, बिकॉज दे आर मूविंग इन द सेम अपोजिट डायरेक्शन. यहाँ पे क्या होगा है कि सारे जितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो नेगेटिव प्लेट की पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा गए और सारे होल जो है वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जा गए. तो इस कारण यहाँ पे ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, पोटेंशियल बैरियर की विड्थ बढ़ती चली जाएगी. आगे चलते हैं. दिस पॉइंट इज आल्सो देयर. आप इस पे ध्यान मत दीजिएगा पॉइंट्स पे, बस एक बार पढ़ लीजिएगा इसको. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज देयर रिवर्स सैचुरेशन करंट. अब यहाँ पे आपका पॉइंट आता है एग्जाम में कि द करंट इज कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव टू द वोल्टेज. मैं कितनी भी वोल्ट की सप्लाई दे दूं इसको, लेकिन करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि आपके जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी कैरियर हैं दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन. अप टू अ सर्टेन लिमिट दे विल मूव. एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही वो ऐसा कर सकते हैं, उसके बाद उनमें नहीं होगा. तो वहां पे एक फिक्स वैल्यू ऑफ करंट डेवलप हो जाएगी, जिसको हम कहेंगे रिवर्स सैचुरेशन करंट. सिंस द नंबर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर इज वेरी स्मॉल. मेजॉरिटी कैरियर तो सब मूव करके जा चुके हैं, अब बचा माइनॉरिटी कैरियर. सिंस द नंबर ऑफ माइनॉरिटी कैरियर इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर द करंट इज स्मॉल and is of the order of 10 to the power -9 to -6. -9 for the silicon diode and -6 for the germanium diode. And thus, whenever we are drawing the graph for the reverse biasing, we have to take microammeter for measuring the amount of current. In reversed bias, PN junction has an effective capacitance called transistor transitions or depletion capacitance. ये आपका पोर्शन एग्जाम में नहीं पूछा जाता. चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे. दिस इज डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग. यहाँ पे क्वेश्चंस आपके लिए एग्जाम में मिलेंगे. ड्रॉ द डायग्राम, सर्किट डायग्राम फॉर द फॉरवर्ड बायसिंग केस एंड ड्रॉ द डायग्राम फॉर द रिवर्स बायसिंग केस. तो यहाँ पे आप देखिए, दिस इज योर एक्सटर्नल बैटरी. इट इज कनेक्टेड विद ए रियोस्टेट. इसको रियोस्टेट से कनेक्ट कर दिया गया है. रियोस्टेट का जो थर्ड एंड होता है, जिसको हम कहते हैं स्लाइडर, वो स्लाइडर आपके डायोड जो है, दिस इज सिंबल ऑफ डायोड. पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है. दिस ट्रायंगुलर फेस इज कॉल्ड पी साइड एंड दिस वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड एन साइड. अब देखिए इसका जो पी साइड है, इट इज कनेक्टेड विद द पॉजिटिव. लुक एट दिस, इट इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव साइन. And the negative n side of the diode is connected with first an emitter and then to the negative side. तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पॉजिटिव साइड P से कनेक्ट हो गया, नेगेटिव साइड N से कनेक्ट हो गया. So it is called forward biasing. And in case of forward biasing we use milliammeter and voltmeter. इसी चीज को, सर्किट को पूरा ऐसे ही रहने दो, लेकिन अब की बार डायोड को रिवर्स कर देते हैं. मींस एरो की डायरेक्शन रिवर्स करनी है और N साइड को रिवर्स कर देना है. Now this is N side, this is P side, and अब की बार N side जो है वो कनेक्ट है पॉजिटिव प्लेट से और P side है कनेक्टेड है वो नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है.
So it becomes a reverse biasing case, and it is a more basic question for this chapter. Draw the circuit diagram for forward biasing and reverse biasing, and along with that there is a curve. अगर आपसे पूछा जाए फॉरवर्ड बायसिंग के लिए कर्व आपको बनाना है, then you have to draw the first quadrant part only, which shows milliampere on the y-axis and volt on the forward voltage on the x-axis. And if you remember, this curve is not a direct curve starting with 0. ये 0 से स्टार्ट तो होगा, बट कुछ वैल्यू के लिए इसका जो स्लोप है वो नियरली 0 है. एंड आफ्टर दैट देयर इज अ पीक. उसके बाद यहाँ पे ये क्या होता है, ये थोड़ा सा हाइट अटेंड करना स्टार्ट करता है, उसके बाद ये लीनियर हो जाता है. तो दीज आर सच डिवाइसेस, डायोड्स ऐसी डिवाइस होती हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती हैं. यू कैन सी फ्रॉम द ग्राफ, दीज आर कॉल्ड नॉन ओमिक डिवाइसेस. तो जो नीचे का रीजन है, जब तक आपकी फॉरवर्ड वोल्टेज बहुत कम है तब तक इसने ओम्स लॉ को फॉलो ही नहीं किया, और उसके बाद ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है. सो दिस रीजन शोज कि डायोड जो है वो नॉन ओमिक डिवाइसेस हैं, और ये रीजन आपको ओमिक बता रहा है. तो टोटली ये नॉन ओमिक ही रहेगा. बट दिस इज व्हाई दिस इज देयर कि आपका जो स्टार्टिंग है वो 0 से नहीं हुआ. थोड़ी देर तक आपने वोल्टेज को बढ़ाया और तब तक आपका करंट 0 था. उसका एक सिंपल सा रीजन है डिप्लेशन रीजन. जब तक आपके इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रिकम्बाइन होंगे और आपका पोटेंशियल अमाउंट जो होगा, पोटेंशियल बैरियर की जो विड्थ होगी वो हाई होगी, तब तक आपका करंट का डिटेक्शन नहीं कर पाएगा मिलीएम्पीयर. बट व्हेन यू क्रॉस दिस बैरियर, लेकिन जब आपने सप्लाई की, जो फॉरवर्ड सप्लाई दिया है वोल्टेज का, ये आपका पोटेंशियल बैरियर से ग्रेटर हो जाएगा, वैसे ही आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो करना स्टार्ट कर देंगे एंड करंट विल स्टार्ट मूविंग, एंड देन इट विल फॉलो द लीनियर कर्व. सिमिलरली अगर हम बात करें इस थर्ड क्वाड्रेंट की, तो दिस इज द केस ऑफ ग्राफ फॉर द रिवर्स बायसिंग. एंड इन दिस केस यू कैन सी however backward voltage या reverse voltage you apply, the current remains the constant most of the time. अब देखिए वोल्टेज को आपने धीमे धीमे इंक्रीज किया है, लेकिन करंट की वोल्टेज जो करंट है माइक्रो एमीटर में वो काफी हद तक सेम आ रहा है. आफ्टर सो मेनी ट्रायल आपका ऐसा एक पोजीशन आएगा जहां पे आप रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाएंगे एंड करंट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. आफ्टर सर्टेन चेंजेस, आप कुछ चेंजेस के बाद, जब आप 1 या 2 रीडिंग लेंगे उसके बाद आप देखेंगे आप कितना भी बैकवर्ड वोल्टेज को बढ़ा लीजिए, रिवर्स वोल्टेज को बढ़ा लीजिए, लेकिन करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो गई. दैट मींस दिस इज अ केस ऑफ सैचुरेशन. अब इसके बाद करंट सैचुरेट हो चुका है, आप कुछ भी कर लीजिए, करंट को कितना भी बढ़ा लीजिए, लेकिन वोल्टेज की वैल्यू बढ़ नहीं सकती. नाउ दिस इज अ सैचुरेशन रीजन. ठीक है, तो यहां तक आपका कर्व आपसे पूछा जा सकता है फॉरवर्ड बायसिंग के लिए, रिवर्स बायसिंग के लिए, और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बनते हैं. दिस इज VB विच इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, जहां पे जाने के बाद आपका सिस्टम जो है, पीएन जंक्शन डायोड जो है वो रिवर्स बायस में काम करना बंद कर देगा. रिवर्स बायस में कभी कभार हम सर्किट को लगा देते हैं एंड इट स्टार्ट ऑपरेटिंग, बट आपका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है इससे नीचे जाने पे ये काम करना ही बिल्कुल बंद कर दिया. ब्रेकडाउन वोल्टेज आपकी लास्ट लिमिट है, उसके बाद ये काम नहीं करेगा. रेजिस्टेंस ऑफ डायोड ये आपको नहीं पढ़ना है. ठीक है, डीसी और जो भी केसेस आपको दिए वो नहीं पढ़ने हैं आपने. अब हम बात करते हैं we have done with this portion. Now this is the PN junction diode as a rectifier. First of all, what is the meaning of rectifier? Rectifier can be said is a component or is a device that allows some material to pass through and do not allow some other material to pass through the circuit. ये चीजों को क्या करता है, फिल्टर आउट करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर बोलते हैं. तो PN junction diode is also behaving as a filter, rectifier. First of all, we focus on half wave rectifier, then there is a full wave rectifier also, and before going to that, just there is rectification. That process is there, the process of converting AC into DC, alternating current into direct current, and this is called rectification. आप लोगों ने अपने ट्रांजिस्टर्स देखे हैं, आप लोगों ने आपके जो फोन्स होते हैं उसके एडेप्टर्स को आप कभी खोल के देखिए, उसमें एक ट्रांजिस्टर का सर्किट बना होता है जिसमें
4 ब्लैक कलर के आपके कंपोनेंट लगे होते हैं जिनको नॉर्मली हम डायोड कहते हैं, एंड दे आर जस्ट नथिंग बट रेक्टिफायर। वो रेक्टिफायर है क्योंकि आपकी जो सप्लाई आती है घर के अंदर वो एसी होती है, लेकिन आपका जो फोन होता है उसको डीसी सप्लाई चाहिए। तो एडेप्टर क्या करता है, आपकी सप्लाई को पहले तो स्टेप डाउन करेगा, दूसरी बात उसमें से जितने भी फ्लक्चुएशंस होंगी बिकॉज ऑफ एसी सप्लाई उसको क्या कर देगा, डीसी में कन्वर्ट कर देगा। तो दिस इज रेक्टिफिकेशन। द डिवाइस यूज्ड फॉर रेक्टिफिकेशन इज कॉल्ड रेक्टिफायर। पीएन जंक्शन डायोड ऑफर्स लो रेजिस्टेंस इन फॉरवर्ड बायसिंग। ये सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा। पीएन जंक्शन अगर फॉरवर्ड बायस है तो लो रेजिस्टेंस फ्लो करेगा एंड मैक्सिमम करंट जा सकता है। दैट इज व्हाई कर्व इज स्ट्रेट लाइन। इन रिवर्स बायसिंग आपका रेजिस्टेंस जो होता है मैक्सिमाइज हो जाता है बिकॉज डिप्लेशन रीजन की विड्थ बढ़ जाती है, रेजिस्टेंस मैक्सिमाइज हो जाएगा एंड देयरफॉर लो अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो। और आप कह सकते हैं कि उसको फिल्टर कर देगा। हाई रेजिस्टेंस है तो कुछ चीजों को ही अलाउ करेगा, लिमिटेड चीजों को, सभी चीजों को अलाउ नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपका एक सर्किट दिखाया गया है जिसमें आपने इनपुट दिया है वेव्स का, ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा है स्टेप डाउन, और यहाँ पे एक डायोड है, ठीक है। इसको हमने लोड रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया है और वी आर गेटिंग सम आउटपुट ओवर हियर। इन सेकंड सर्किट हमने जो पॉजिटिव साइकिल थी उसको नेगेटिव साइकिल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जब पॉजिटिव साइकिल आपने लिया है, पॉजिटिव इज कनेक्टेड विद पी प्लेट एंड नेगेटिव कनेक्टेड विद एन प्लेट। ऑब्वियसली ये फॉरवर्ड वाइसिंग है, काम करेगा, लो रेजिस्टेंस होता है क्योंकि। लेकिन जब हम इसको नेगेटिव साइकिल से अटैच कर देंगे, अब आपके बैटरी के टर्मिनल्स को आपने अपोजिट ले लिया क्योंकि एसी है, एसी में एक बार पॉजिटिव साइकिल चलती है, एक बार नेगेटिव साइकिल चलती है। तो जब पॉजिटिव साइकिल चली तो दिस साइड बिकम्स पी, दिस साइड बिकम्स नेगेटिव। जब नेगेटिव साइकिल आएगी तो आपके टर्म्स अपोजिट हो जाएंगे, बट डायोड अपोजिट नहीं हुआ। अब ये साइड जो है माइनस वाली, ये प्लस पॉइंट से कनेक्ट, पी टाइप से कनेक्ट हो गई और पॉजिटिव वाली एन टाइप से कनेक्ट हो गया। सिस्टम बिकम्स रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में डिप्लेशन रीजन की विड्थ बढ़ जाती है और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो आपको आउटपुट टर्मिनल पे करंट ना के बराबर मिलेगा, क्योंकि करंट या तो माइक्रो एम्पियर में है या नैनो एम्पियर में है और उसको मेजर करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि आपका जो पॉजिटिव साइकिल है वो तो करंट को भेजेगी, लेकिन नेगेटिव साइड का करंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। इसे कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। सो देयर इज फाइनल रिजल्ट, और जो आपको एग्जाम में बनाना है वो यही है। थर्ड केस, in this half wave rectification you have a single diode, you have a load resistance, and there is transformer, a step down transformer. You have to show your input wave which is full wave। यहाँ पे जो input wave भेजेंगे वो AC wave है। इसमें अपर साइकिल पॉजिटिव बता गई है, लोअर साइकिल आपको नेगेटिव बता गई है। लेकिन जो आपको आउटपुट टर्मिनल पे मिलेगा, आउटपुट टर्मिनल पे क्या मिल रहा है, केवल आपको पॉजिटिव साइकिल ही मिल गई है, नेगेटिव साइकिल यहाँ से अब्सेंट है। तो कह सकते हैं ये हाफ वेव को सेंड करेगा, हाफ को ब्लॉक कर देगा। नाउ दिस इज फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब आप देखिए डायग्राम में वी हैव टेकन टू डायोड्स D1 एंड D2 और लोड रेजिस्टेंस को यहाँ पे सेंटर टैप कर दिया गया है। जब हम यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल भेजते हैं, दिस साइड बिकम्स पॉजिटिव, दिस साइड बिकम्स नेगेटिव। नाउ D1 इज बिहेविंग एज ए forward biasing because P is connected with plus and negative connected with N type। लेकिन डायोड अगर हम D2 की बात करें, look at D2, पॉजिटिव साइड N से कनेक्ट हो गया, नेगेटिव से कनेक्ट हो गया और नेगेटिव साइड पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट हो गया। तो एक टाइम पे एक ही डायोड आपका वर्क करेगा। पॉजिटिव साइकिल है तो D1 वर्क कर रहा है, फॉरवर्ड बाइसिंग है, लेकिन D2 नहीं करेगा बिकॉज ये रिवर्स बाइसिंग है ना। यू विल गेट ए हाफ वेव। फॉर द नेगेटिव साइकिल अब आपका क्या होगा, D1 ब्लॉक हो जाएगा और D2 क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। अगेन यू गेव नेक्स्ट हाफ साइकिल, लेकिन आपको क्या मिल रहा है, फर्स्ट हाफ साइकिल का पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव हाफ साइकिल का पॉजिटिव पार्ट, और जब आप इन दोनों को एक साथ कंबाइन करेंगे यू विल गॉट दिस टाइप ऑफ आउटपुट वेव, ठीक है। ये आपको फाइनल आउटपुट वेव मिलेगी इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए D1 वर्क करेगा, सेकेंड हाफ साइकिल के लिए D2 वर्क करेगा। सो बाय दिस वे आपका डायोड क्या करेगा, पूरी की पूरी वेव्स को डीसी में कन्वर्ट कर देगा, और दिस इज द फंक्शन विच इज गोइंग ऑन इन योर एडेप्टर। आपके एडेप्टर में यही फंक्शन होता है।
एंड दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, जीनर डायोड, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है फॉर दिस ईयर. सो विद दिस द स्लाइड्स टॉपिक्स इज ओवर नाउ, एंड नाउ वी आर लेफ्टिंग विद द स्पेशल डिवाइसेस. स्पेशल डिवाइस को हम पढ़ेंगे जो कि आपकी टुमागो क्लास के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग.